नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम कैथल के दी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन और जो प्राइमरी ब्लॉक है उसका इनॉग्रेशन है। तो साइंस एग्जीबिशन की अगर हम बात करें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने शानदार मॉडल्स बनाए हैं, अपनी अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाई है। तो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कितने जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सभी मॉडल्स जो स्कूली बच्चों ने बनाए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं। तो अगर मैं चीफ गेस्ट की बात करूँ, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी पहुंचे हैं जो वाइस चांसलर रहे हैं देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के। और आइए उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ बच्चों को मैसेज देंगे और बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि मॉडल्स किस प्रकार तैयार किए हैं, क्या कुछ इनका प्रभाव रहेगा। और जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आज की जो साइंस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। Morning everyone. Healthy eating is not about counting fat, grams, dieting, cleans and antioxidants. It is all about eating food untouched from the way we find it in nature in a balanced way. Good morning, everyone. Your diet is a bank account. Good food choices, good investments. Good morning, everyone. Better food, better mood. Food make everything better. Good morning, everyone. Eating healthy food fills your body with energy and nutrients. Imagine that yourself smiling back at you and saying thank you. Good morning, everyone. The more you fill up on the healthy food, the less space you will have for unhealthy food. Health requires healthy food. If you will keep good food in your fridge, you will eat good food. Thank you. वर्कशॉप पे आपने राउंड लिया एग्जीबिशन का और बच्चों का, तो किस तरह के जो मॉडल्स आपको पसंद आए, क्या कुछ कहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है तो देखा है राउंड, बहुत ही अच्छा है। इनकी प्रिपरेशन और एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। तकरीबन ऑलमोस्ट साइंस के हर सब्जेक्ट को इन्होंने कवर किया हुआ है और बच्चों की प्रिपरेशन भी अच्छी है, हाई लेवल की है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में क्या कहोगे। डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है। स्कूल का जो लेवल्स है, टीचर्स है, टीचिंग्स के बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो जितना मेरे बच्चों को भी यहाँ से स्टार्टिंग से यही है, मेरे बच्चे, एक बेटा है, बेटी है, तो बहुत ही अच्छा है। इनका लेवल हर चीज़ में बहुत बेटर है। यू आर सेटिस्फाइड। बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड। Good morning, sir. I am Jigyasa from class 6 Lotus. Today, me and my friends Navya and Anshika are going to tell about insectivorous plants, the plants that eat insects. Most of these plants live in wet, baggy areas where the soil doesn't have much nutrients. They derive their nutrients from their prey. They are commonly found in North America and Antarctica. Now, I will tell you about two types of insectivorous plants. Pitfall trap. They are found in pitcher plant. They comprise of a hollow leaf with a lid filled with a liquid used to digest the prey. Now I will tell about snap trap. These types of traps are present in Venus flytrap. They they shed their leaves rapidly as the prey touches the trigger hair. Now I will tell you about the functioning of snap, Venus flytrap and pitfall trap. When the insect sits in the mouth of it, it closes its mouth rapidly. Second, pitfall trap. There is an oily substance present outside outside it. The insect fall in it. There is a sticky substance in which the insect sticks. Then it sheds its leaves and the insect is digested. Now Navya will tell you further. Myself, Navya, I will tell you about bladderwort trap and flypaper trap. Bladderwort trap, they are commonly found in Reticularia. They have a partial vacuum to suck the tiny organisms. Flypaper trap. These traps are sticky and acid. Its leaves are covered in stalked plants that hide sticky mucilage. Now Anshika will tell you further. Myself Anshika. Now I will tell you about some lobster pot traps. These are found in corkscrew plants. They possess downward pointing hair that pushes the prey deep inside the trap. The insectivorous plants digest their prey chemically using enzymes and bacteria. The end product of the chemical breakdowns are absorbed by plants to help them survive under unfavorable conditions. Thank you. सर, स्कूल का बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट में अहम रोल होता है, तो क्या कुछ कहोगे आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आजा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में
मुझे आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। मैं पूरे भारतवर्ष के स्कूल और कॉलेजेस को देखता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के मुझे अलग से एक सुखद अनुभव हुआ। और बच्चों ने यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई है, क्योंकि आज विज्ञान का युग है, दौड़ का युग है, और विज्ञान ही किसी देश की उन्नति, तरक्की और विकास में सहायक हो सकता है। प्राय मैं पहले वार्षिक उत्सव, खेलकूद में या बच्चों को पारितोषिक देना, इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता था, लेकिन पहली बार इस प्रकार विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को हम किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें एक वैज्ञानिक और उनको अनुसंधान की तरफ लगाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब अनुसंधान, आविष्कार की तरफ और साइंस को समझेंगे, यानी सबसे पहला जो वाक्य है कि विज्ञान क्या है, हमने इन बच्चों को ये बतलाना है। और विज्ञान ये अपने आप में सत्य को जानने की एक प्रक्रिया है। सत्य को हम कैसे जानेंगे? वो वस्तुनिष्ठ के रूप में जानेंगे कि जब हम सत्य को जानना, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना है कि ये प्रामाणिक रूप से सिद्ध है, यानी विज्ञान का अर्थ है सत्य। तो हम बच्चों को विज्ञान के बारे में प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जब विज्ञान में रुचि रखेंगे तो भारतवर्ष का ऐसा कोई विषय नहीं है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो कला है, अन्य विषय हैं, वो उनके साथ जुड़ता है। तो विज्ञान की ये प्रदर्शनी छोटे छोटे बच्चे जो तीसरी से लेकर के मैं समझता हूँ कि 8वीं तक के बच्चों ने ये प्रदर्शनी अपने आप ही मॉडल बनाए हैं, और इस प्रकार वो अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको कहाँ कहाँ से कैसे, टीचर ने भी सहयोग किया होगा, लेकिन बच्चों ने ज़्यादा इसमें अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है। तो विद्यालय जब इस प्रकार के कार्य करता है, और मैं तो इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आपने विद्यालय में विज्ञान से शुरुआत की है। मैं पुनः कहता हूँ, आज वही व्यक्ति विकास करेगा, वही समाज विकास करेगा, वही राष्ट्र विकास करेगा जहाँ विज्ञान सर्वोपरि होगा। और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बतलाना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को हमें मोबाइल के प्रति प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि मार्टिन कपूर ने 50 वर्षों पहले इसका आविष्कार किया था, और उसने इसका आविष्कार इसलिए किया था कि हम साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदियों तक ले जाएं। तो मैं टीचर के माध्यम से, अपने स्टूडेंट के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम मोबाइल का उतना ही प्रयोग करें जितनी ज़रूरत है। हम इसके लिए समय निर्धारित करें कि हमने इनोवेटिव, यानी आविष्कार के रूप में, अन्वेषण के रूप में जो चीज़ हम गूगल पर देख सकते हैं, यानी हम ज्ञान वर्धन के लिए मोबाइल का प्रयोग करें, क्योंकि मोबाइल ने हमें एकांत कर दिया। यानी हम अगर दोस्तों में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, अध्यापकों के साथ बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, मोबाइल ने प्रत्येक व्यक्ति को एकांत दे दिया। उसको ये ध्यान नहीं है कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, परिवार में बैठा हूँ, उसका जो फोकस है वो मोबाइल पर है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का प्रयोग ना करें, मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को टीचर और पेरेंट्स ये समझाएं कि मोबाइल का उतना ही प्रयोग करें जहां इसकी जितनी ज़रूरत है, और हम पूरे समय अगर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मैं अन्वेषण और खोज के आधार पर बतला रहा हूं कि भारतवर्ष नहीं, विश्व के अंदर शारीरिक और मानसिक बीमारियां बहुत फैल गई इस मोबाइल के कारण। तो हमारा स्कूल के माध्यम से, प्राध्यापकों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि हम विद्यार्थियों को इसके लाभ और हानि से अवगत करवाएं, और जहां ज़रूरत है हम इसका प्रयोग करें। सर, आपने एक बात कही कि मोबाइल का प्रयोग करें। हम जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, IAS IPS जो बच्चे बनते हैं, जो सक्सेस बच्चे बनते हैं, उनका ज़्यादातर का ये कहना होता है कि हमने मोबाइल का यूज ही नहीं किया। तो इस बारे में क्या कहें? जो बच्चे
भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की परीक्षा देते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसने मोबाइल का प्रयोग नहीं किया। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी आपके जहन में भी आता है तो उसको मुझे ज़रूर मिलाएंगे। मेरा बेटा भी ये तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं भी जैसे कि समाज में इस तरह की बातें करता हूँ, लेकिन वो विद्यार्थी उस पर फोकस करता है, जैसे मैंने कहा, जितनी ज़रूरत है और जितने समय मोबाइल की आवश्यकता है, यानी समय और ज़रूरत के अनुसार मोबाइल की व्यवस्था करके यूज किया जाना लाभकारी है। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा गुरमेल सिंह नाम है जी। जी और स्मृति है मेरी गुड़िया, 6th क्लास में है। जी और सिंगल चाइल्ड है मेरी इस टाइम, गुड़िया मेरे पास। जी तो लगभग 5 साल हो गए इसी स्कूल में, तो बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जी और मेरी गुड़िया पहले मतलब स्पोकन थोड़ा कम था, स्पोकन अच्छा हो गया, और इंटरेक्शन दूसरों के साथ बहुत कम थी। तो अब क्लासरूम के अंदर मतलब बच्चों के साथ मिलजुल के ना इंटरेक्शन बहुत बढ़िया हो गया है। तो आज साइंस एग्जीबिशन आपने देखी तो किस तरह की लगी? जैसे मैं बच्चों अभी ने वैसे बहुत एंट्री ही करी थी, अब देख रहा हूँ। बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है और अच्छा बता रहे हैं, नॉलेज बढ़िया है, एप्लीकेशन सब अच्छे बता रहे हैं। बहुत बढ़िया है ओवरऑल। आप बताइए मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुदेश है, इलेक्शन कानून को हूँ मैं। और स्कूल का स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ स्टाफ भी बहुत अच्छा मेहनती है, बहुत पर्सनली मतलब बच्चों को लेकर के अच्छा आगे लेके जा रहे हैं। बच्चों को स्टडी में, स्पीकिंग है, लर्निंग है, हर चीज़ में अच्छे एफर्ट हो रहे हैं। बच्चों के साथ टीचर बड़ा मतलब एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। जो बच्चे बोलते भी नहीं थे अब वो बोलते हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है कि मेरी गुड़िया जो पहले कान के अंदर टीचर के बोलती थी बातें, अब वो ओपनली बात करती है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है और अच्छा करेगा स्कूल, उम्मीद है हमें इस चीज़ की। मैम, आज आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और जो प्राइमरी ब्लॉक है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो क्या कुछ? सर, आज ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। आज पूरे साल का हमने 4th एनुअल एग्जीबिशन प्लान किया और अराउंड 90 मॉडल्स हैं जो बच्चों ने रिफ्लेक्ट किए, जो कि ग्रेड 3rd से ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं आज हमें यहाँ आए सब, ताकि हमें इनॉग्रेशन सेरेमनी में ज्वाइन कर सकें। बेसिकली आज जो मेन एजेंडा है इस प्रोग्राम का, वो बच्चों को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर लेके जाने का है। दूसरा, न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन का है। ये न्यू बिल्डिंग जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की है, स्पेशली दैट इज़ फॉर द प्राइमरी विंग फॉर द जूनियर स्टूडेंट्स। बिकॉज़ अभी हम क्या देखते आ रहे हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस एरिया से जो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें नज़र आई जहाँ पे हमें और स्कूल को फैसिलिटेट करना ज़रूरी था। जैसे कि हम बच्चों में देखते हैं कि एकेडमिकली तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी है कि बच्चे मैनरिज्म के ऊपर वर्क करें, स्पोकन के ऊपर वर्क करें। बिकॉज़ जहाँ भी बच्चे जाते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो किस रीजन से हैं, उनके खाने की हैबिट से, उनके चलने की हैबिट से, उनके बोलने की हैबिट से। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए हमने इस प्राइमरी विंग को अलग से स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। आज बच्चे हर चीज़ के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो एक उनके ऊपर वो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे अपना सेल्फ केयर जाने कि कैसे उनको सेल्फ केयर करना है, कैसे खुद का ध्यान रखना है, कैसे खाना पीना है। दूसरों के सामने हम क्या देखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ यही देखते हैं कि बच्चा कैसे खा रहा है। तो डाइनिंग मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार एकेडमिक सेशन में, जो हम लेके आना चाहते हैं सेल्फ केयर सेक्शन हमारा। उसके अलावा जो हमने काम किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग मेथोलॉजीज़ पे काम किया है, ताकि हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक अच्छे लैंग्वेज के लिए लेके जा सकें। उसके लिए हमने लैंग्वेज लैब सेटअप की है, और बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एडवांस करने के लिए ये प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ होती है केयर, एक तो सेल्फ केयर, एक दूसरों का दूसरों के लिए भी केयर करना। तो इसीलिए हमने पूरे प्राइमरी ब्लॉक में, ये केवल सजावट के लिए चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए उनका यूज़ होना चाहिए स्कूल में। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे, जैसे फिश एक्वेरियम है, एक छोटा सा बर्ड सेंचुरी लिया है। जो पेट एनिमल्स हम घर में रख सकते हैं उन सबको हमने यहाँ स्कूल में रखने की कोशिश की है, ताकि बच्चे उनके साथ अपना एक लगाव समझें और उनकी भी केयर करें। जब बच्चों में ये बेसिक सेंस जनरेट होता है ना, दूसरों की केयर करने का, खुद का ध्यान रखने का, अच्छा बोलने का, सही तरीके से खाने का, तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। और वो पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत बेसिक नीड है जो एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। केवल चीज़ें रख देना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना,
दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम स्टाफ के इस तरह से ट्रेन करें और अपने बच्चों को भी आगे ट्रेन करें कि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में अच्छे जा सकें और हम एक यहाँ की कैथल के लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें अपने बच्चों के लिए। सर, आज आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और प्राइमरी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। बच्चों के मॉडल्स भी हमने देखे, पेरेंट्स ने भी देखे, काफ़ी शानदार मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से बच्चों ने मेहनत की? बच्चे साल के शुरू से ही उस दिशा में काम करने लगते हैं और जो इनका सिलेबस है उसी के अनुसार मॉडल तैयार किए जाते हैं ताकि इनको जो चीज़ ये बुक्स में पढ़ते हैं उन्हीं का प्रैक्टिकल रूप देखने को और करने को मिले। और इसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन पर हम फोकस करते हैं ताकि बच्चा जिस बात को किताब में पढ़ता है यदि वो उसके अपने हाथ से करके देख लेता है तो वो उसके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाती है और उसके व्यवहारिक जीवन में उसको काम ले सकता है। सर, आपका एक स्लोगन है जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशो है 15/1 किया हुआ है आपने, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? एक टीचर के हिस्से में जितने बच्चे पढ़ाने के लिए हम जिम्मेदारी देते हैं यदि उनकी संख्या एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो वो बच्चों को ठीक तरीके से अपनी बात समझा नहीं पाएगा, बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। जितने बच्चे कम होंगे टीचर उनकी आंख में आंख मिला करके जब बात करता है तो एक तो बच्चा शरारत नहीं करता और उसका पूरा ध्यान टीचर की बात सुनने पे होता है और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला है। इस बात को मैं आगे भी जारी रखूँगा कि एक टीचर के हिस्से में 10 या 12-15 बच्चे हों तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो सर, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? पेरेंट्स अमूमन किसी भी स्कूल में जाकर के उसकी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। मेरा कहना है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ओर ध्यान दें और अपने बच्चे को उसी स्कूल में दाखिल करवाएं जहां एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता हो।